Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. Let's get start our today's lesson. In our previous lecture we have discussed about solubility and effect of temperature on solubility. Now we are going to study about some uses of solutions. A solution is a combination of two or more components. The first component is the solute and the second one is solvent. The solute is always less in amount while the solvent is the substance in which solute dissolves. Now let us discuss about some uses of solutions. There are many types of solutions that we use in our daily life. For example, carbonate with water, lemonade, air, ocean, steel, tea, etc. Now we will discuss about these solutions one by one. Firstly, we will talk about carbonated water. Carbonated water is actually a solution of carbon dioxide and the other substances that are dissolved in water. When we shake a can of carbonated water, then we see that the gas separates quickly from the water. In a closed can, the bubbles of gas has no space to go out, so it builds a pressure on a liquid. When we open a can, then the gas go out into the environment. The next solution that we have to discuss is lemonade. We know that lemonade is a solution of lemon juice, sugar and water. When these substances mix together, then they form a solution which is known as lemonade. Similarly, air is a mixture of different gases. Some gases are present in large quantity, for example nitrogen, while other gases are present in smaller quantity, for example carbon dioxide. The next solution is ocean. We know that oceans are the largest solutions in the world, and ocean is a mixture of salt and water. In this solution, salt is a solute while water acts as a solvent. Next, we will talk about steel. Steel is also a solution which is made up of alloy. Alloy is actually a solution of two or more metals. When two or more metals combine together, then they form alloy. During steel making process, iron and carbon are melted, and in this way carbon is dissolved in iron to form steel. Tea is also a solution of sugar, tea and milk. In this solution, tea and sugar act as solute while milk act as a solvent. स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन के बारे में हमें पता है कि सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, जिसमें एक सोल्यूट होता है और दूसरा सॉल्वेंट होता है। सोल्यूट हमेशा कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, यानी कम मिकदार में होगा, और सॉल्वेंट जो है वो सब्सटेंस है जिसके अंदर सोल्यूट डिसॉल्व होता है। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारे सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं, जैसे कार्बोनेटेड वाटर, लेमनेड, एयर, ओशन, स्टील और चाय वगैरह। अब हम इन सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम कार्बोनेटेड वाटर को डिस्कस करेंगे। कार्बोनेटेड वाटर दरअसल कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी अशिया जैसा कि फ्लेवर, शुगर वगैरह का पानी में मिक्सचर होता है। इन ड्रिंक्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस्तेमाल की जाती है, इसी वजह से हम इनको कार्बोनेटेड वाटर कहते हैं। जब हम कार्बोनेटेड वाटर की जो कैन या बोतल है, जिसको जब हम उसको ज़ोर ज़ोर से शेक करते हैं, तो हम देखते हैं कि बोतल के ऊपर वाली साइड पर गैस के बबल्स बन जाते हैं, जबकि पानी की एक लेयर नीचे रह जाती है। ये बबल्स बोतल के अंदर तब तक रहेंगे जब तक हम कैन का लिड ओपन नहीं करेंगे। जैसे ही हम कैन का लिड ओपन करेंगे तो ये जो गैस है ये बहुत तेज़ी के साथ बोतल में से निकल जाएगी। नेक्स्ट जो हमने सॉल्यूशन डिस्कस करना है वो है लेमन वाटर। लेमन वाटर के अंदर हमें पता है कि हम लेमन जूस, शुगर और वाटर को ऐड करते हैं। इसमें लेमन जूस और शुगर सोल्यूट के तौर पे ऐड करते हैं, क्योंकि कम क्वांटिटी में ऐड किए जाते हैं, जबकि वाटर जो होता है वो एक बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में होता है और सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करता है। इस वजह से वो एज अ सॉल्वेंट एक्ट करता है। और हमें पता है कि सोल्यूशन में दो कंपोनेंट्स रिक्वायर होते हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो जब सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स होते हैं तो सोल्यूशन बनता है। बिल्कुल इसी तरह से जो हम चाय बनाते हैं घर में, चाय के अंदर भी हम चाय की पत्ती, शुगर और मिल्क को यूज़ करते हैं। इसमें भी जो चाय और शुगर वो दोनों सोल्यूट के तौर पे एक्ट करते हैं, जबकि जो मिल्क है वो एज अ सॉल्वेंट एक्ट करता है, और इनकी मिक्सिंग से हमारे पास एक सोल्यूशन तैयार होता है जो कि टी है।
हम अपने घरों में जो मुख्तलिफ स्टील के बर्तन इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह स्टील गाड़ियों और बिल्डिंग्स वगैरह को बनाने में भी इस्तेमाल होता है। ये जो स्टील यानी फ़ौलाद है, ये भी मुख्तलिफ मेटल्स का सॉल्यूशन होता है। फ़ौलाद को बनाने के लिए हमें लोहे और कार्बन को मेल्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लोहे में बहुत आसानी से डिज़ोल्व हो जाती है और एक सॉल्यूशन तैयार होता है जिसको कहते हैं स्टील यानी फ़ौलाद। समुंदर जो है वो नमकियात और पानी का मिक्सचर होता है। इसमें भी नमकियात एज अ सोल्यूट एक्ट करते हैं, जबकि जो पानी है वो सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट करता है। समुंदर दुनिया के सबसे बड़े सॉल्यूशंस में शुमार किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेसन में जो हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं उसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब सम यूजेस ऑफ सॉल्यूशंस। इस क्वेश्चन के आंसर में आप ये सारे यूजेस लिखेंगे। तो जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ एलॉय। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप लोग लिखेंगे अ सॉल्यूशन ऑफ टू और मोर मेटल्स इज कॉल्ड एलॉय। उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस के आंसर किस तरह से देंगे। जो सबसे पहला सवाल है वो है सॉल्यूशन के चंद इस्तेमालात बयान करें। इस क्वेश्चन के आंसर में आप लोग ये सारे इस्तेमालात लिखेंगे। और जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो है एलॉय से क्या मुराद है। तो दो या दो से ज़्यादा धातुओं का सॉल्यूशन एलॉय कहलाता है। तो ओके स्टूडेंट्स, आज का लेसन आपका यहीं तक है। इसे आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।